बायोप्सी फ्रॉम एन अल्सर इज टेकन फ्रॉम वेयर, तो इट इज़ टेकन फ्रॉम बॉर्डर ऑफ द अल्सर, ठीक है। The proper management of oral mucosal lesions begins with diagnosis, and the gold standard for diagnosing a disease, oral or otherwise any other tissue, is biopsy. Gold standard biopsy होता है. The clinician should attempt to take the sample from the tissue that has been most severely affected and significantly affected. A rapid proliferation of carcinoma can outpace the nutrient supply and result in necrosis and ulceration in the body. Biopsy of the sample from the center of the ulcer or its base results in non-specific diagnosis. अगर center of the ulcer से लोगे तो वहाँ पे non-specific diagnosis बनता है, क्योंकि you cannot compare it to the normal, ठीक है। आप adjacent mucosa के साथ उसे compare ही नहीं कर पाओगे. So that is why the adjacent intact mucosa often is configured as a raised border that should be taken as the biopsy target. नॉर्मल लाइनिंग के साथ जहाँ पे रेज्ड बॉर्डर बन रहा है, मतलब जहाँ बॉर्डर बन रहा है इसका लीजन का, उसके साथ नॉर्मल लाइनिंग प्लस जो हमारा कार्सिनोमा वाला टिश्यू है वो मिल के हमारा बायोप्सी का सैंपल होना चाहिए. सो वी टेक द सैंपल फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ द अल्सर. नेक्स्ट, नॉट अ प्री मैलिग्नेंट लीजन इज व्हाट. देखो ये सिंपल से याद करने वाली चीज़ है. ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया, कैंडिडल ल्यूकोप्लेकिया, ये सारे प्री मैलिग्नेंट लीजन्स हैं, ठीक है. ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस इज नॉट अ प्री मैलिग्नेंट लीजन. Alright. Historically, the definition of oral pre-malignant lesions dates back to 1978, when it was defined by the World Health Organization as a morphologically altered tissue in which the cancer is more likely to occur than its normal counterpart. The pre-malignant condition is in turn a generalized state associated with significantly increased risk of cancer. मतलब पूरी बॉडी की ही कंडीशन इंक्रीज कर जाती है फॉर इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर. प्री मैलिग्नेंट लीजन्स में ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया, ल्यूकोकेराटोसिस, निकोटीना पैलेटिना, कैंडिडियासिस लुकोप्लेकिया या कैंडिडियासिस एंड कार्सिनोमा इन सीटू, ये आते हैं LELCC, ठीक है. अब प्री मैलिग्नेंट कंडीशन में वी हैव oral submucous fibrosis. It is a pre-malignant condition. Oral lichen planus, it's a pre-malignant condition. Actinic keratosis, it is a pre-malignant condition. Syphilis is a pre-malignant condition. Discoid lupus erythematosus is a pre-malignant condition. And sideropenic dysphagia is a pre-malignant condition. Next, SST is not recommended in what? SST होता है सॉकेट शील्ड टेक्निक, जो हमने पीछे बात करी थी, ठीक है. इट इज़ नॉट रिकमेंडेड इन 1, 2 and 4, 4 ऑप्शन दिए हमारे पास. इन टीथ विद वाइडनिंग ऑफ द पेरिडोंटल लिगामेंट, जहाँ वाइडनिंग ऑफ द पेरिडोंटल लिगामेंट है वहाँ पहले ही दांत की रूट जो है वो छोड़ देगी दांत का साथ. सेकंड इज पेरिडोंटल डिजीज़ में भी हम SST यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है. दैट इज सॉकेट शील्ड टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते. वर्टिकल रूट फ्रैक्चर है वहाँ पे भी नहीं कर सकते, ठीक है. इफ़ देयर इज़ हाफ बक्कल शील्ड, मतलब बक्कल शील्ड जो है वो कम है, सिर्फ बक्कल बोन कम है, तभी हम, और कोई भी पेरियोडोंटल डिजीज़ नहीं है, तभी हम सॉकेट शील्ड टेक्निक का यूज़ करते हैं. SST इज़ नॉट रिकमेंडेड इन द टीथ विद वाइडनिंग ऑफ द पेरियोडोंटल लिगामेंट और पेरियोडोंटल डिजीज़ और मोबिलिटी ऑफ द टूथ इज़ देयर, ठीक है. या फिर टीथ में कोई हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर है, वर्टिकल रूट फ्रैक्चर, वहाँ पर भी नहीं करते. ओलिविया एटल gave solid shield technique and its complications in implant survival rate and clinical outcomes, ठीक है. तो इसमें हमें पेरियोडोंटल डिजीज़ या मोबिलिटी वाला दांत यूज़ नहीं करना है. नेक्स्ट, अ पेशेंट विजिटेड द डेंटल OPD विद रेडियोग्राफ शोइंग द डेंटिनल रिजॉर्प्शन टेकिंग प्लेस इन द रूट कैनाल. Dentinal resorption taking place in the root canal. Clinical examination of the tooth showed pink color of the tooth. Clinical examination पे the tooth was pink in color. What is the most likely diagnosis? Pink color, most likely diagnosis will be osteoclastoma with dentinal resorption in root canal. All right. The following case describes internal resorption of the tooth, that is odontoclastoma. All right. Internal resorption, also known as chronic perforating hyperplasia of pulp. Chronic perforating hyperplasia of pulp. It is internal granuloma, odontoclastoma, pink tooth of Murmury, and is unusual form of tooth resorption that begins centrally within the tooth. Apparently, it is initiated in most of the cases by peculiar inflammation of hyperplasia of pulp. देखो, पल्प की हाइपरप्लेजिया हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिससे कि वो टूथ की रिजॉर्प्शन को अनयूजुअली सेंट्रली इनिशिएट कर देता है. दैट इज नोन एज इंटरनल रिजॉर्प्शन, जिसको क्रॉनिक परफोरेटिंग हाइपरप्लेजिया ऑफ पल्प भी बोल सकते हैं, इंटरनल ग्लैंडोमा बोल सकते हैं, और ओडोंटोक्लास्टोमा भी बोलते हैं. In clinical presentation, the first evidence of lesion may be the appearance of pink-hued area on the crown of the tooth. Pink-hued area दिखाई देता है crown of the tooth पे, which represents the hyperplastic vascular pulp filling the resorbed area. ठीक है. अब ये resorbed area जो है वो overlying tooth surface से दिखना शुरू हो जाता है. That is why it is known as pink tooth.
Next, terminology given by WHO in 2005, London, for precancerous lesions and conditions is what terminology? They are known as oral potentially malignant disorders. क्या टर्मिनोलॉजी दी थी? ओरल पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स. हिस्टोरिकली अ डेफिनेशन ऑफ ओरल प्री मैलिग्नेंट लीजन्स डेट्स बैक टू 1978. ठीक है, दैट इज a morphologically altered tissue in which the cancer is more likely to happen than its apparent normal counterpart. A precancerous condition is a generalized state of a body associated with a significantly increased risk of cancer. ठीक है. In 2005, the Congress of WHO, the term potentially malignant disorders (PMD) lesion was suggested as a replacement of pre-malignant oral lesion and condition. ठीक है. Next, a 15-year-old male patient present with a history of persistent neck pain. On examination, matted cervical lymph nodes were seen. Matted cervical lymph nodes with multiple draining sinuses were palpable. Which of the following can be reason for the presentation? देखो, मल्टीपल ड्रेनिंग साइनसेस है और मल्टीपल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो दैट इज मोस्टली इन्वॉल्व इन ट्यूबरकुलोसिस. यहाँ मैटिंग का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स दैट फील कनेक्टेड. जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनकी एक मैट जैसी फील होती है, कनेक्टेड लिम्फ नोड्स फील होते हैं, और जब उनको मूव करते हैं तो वो यूनिट में मूव करते हैं, एक सिंगल यूनिट या एक सिंगल मैट की तरह मूव करते हैं. नोड्स दैट कैन बी मैटेड कुड बी मैलिग्नेंट नोड्स. लिम्फ नोड्स दैट कैन बी मैटेड कुड बी मैलिग्नेंट, जैसे कि मेटास्टैटिक कार्सिनोमा वाली कंडीशन में, या फिर लिम्फोमा वाली कंडीशन में भी मैटेड हो सकते हैं. अदर कंडीशंस जो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं डिजीज़ की, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस, सार्कोइडोसिस एंड लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरम. लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरम, ट्यूबरकुलोसिस एंड सार्कोइडोसिस, इनमें भी हमारे पास मैटिंग ऑफ लिम्फ नोड्स देखी जाती है. Tuberculosis TB, it is a specific infectious granulomatosis disease caused by Mycobacterium tuberculosis, and it remains as a major health problem in developing countries. Signs and symptoms of tuberculosis: the patient may suffer episodic fevers and chills, but easy fatigability and malaise is there. ठीक है, जनरल बॉडी एक रहती है. They are the chief early features of the disease. There may be gradual weight loss as accompanied with cough, or may be associated with hemolysis. ऑलराइट, मतलब कफ में ब्लड आ सकता है. ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन ऑफ द सबमैंडिबुलर एंड सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, और स्क्रोफुला भी बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन ऑफ सबमैंडिबुलर एंड सर्वाइकल लिम्फ नोड्स को. ये स्क्रोफुला जो होती है वो एक ट्यूबरकुलोसिस लिम्फेडिनाइटिस होती है दैट मे प्रोग्रेस इनटू फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल एब्सिस और रिमेन एज अ टिपिकल ग्रैनुलोमेटोसिस लीजन. इन ईदर केस swelling of the lymph nodes is observed clinically. Next, the patient came with painless anterior mandibular swelling. Radiograph showed multilocular radiolucency. Histopathology ऐसी है. ठीक है. What is the most likely diagnosis? तो it is glandular odontogenic cyst. Glandular odontogenic cyst, it is usually large, solitary, multilocular odontogenic cyst, probably derived from the rest of dental lamina. It is consisting of stratified squamous epithelium containing numerous mucus secreting cells. ठीक है. जो most common area होता है that is affected, that is the mandible. Alright, the mandible seems to be affected more commonly than the maxilla. Mandible में जो incidence होता है इस cyst का, glandular odontogenic cyst का, that is 87.2%. Histologically, glandular odontogenic cyst is lined by parts of non-characterized epithelium of varying thickness. Non-keratinized epithelium से lined होता है by varying thickness. The epithelium has a glandular और pseudo-glandular structure with goblet mucous cells. ठीक है, goblet mucous cells होते हैं इसके अंदर. Producing देखो mucous cells क्या प्रोड्यूस करेगा? Mucus produce करेगा, as well as intraepithelial crypts or microcysts are present containing mucus. These microcysts may open into the surface of the epithelium, giving a papillary corrugated appearance as seen in the image. This is a papillary corrugated appearance. ठीक है, papillary corrugated appearance seen in glandular odontogenic cyst. Next, a male patient visits OMR department with a chief complaint of excruciating pain on right side of the face. किस साइड पे? राइट साइड ऑफ द फेस पे पेन है, स्पेशली इंक्रीजेज ऑन शेविंग. हिस्ट्री इंडिकेटेड दैट ट्रिगर जोन्स आर एसोसिएटेड विद द पेन. तो मोस्ट लाइकली अगर ट्रिगर जोन्स हैं तो इट इज़ द केस ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया. Trigeminal neuralgia, it is an archetype of orofacial neuralgias which follows the anatomical distribution of the fifth cranial nerve. ठीक है, जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व है ट्राइजेमिनल नर्व, उसके पूरे कोर्स के अराउंड ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया वाली पेन जो है वो निकलती है. इट मेनली अफेक्ट्स द सेकंड एंड थर्ड डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व एंड इज मोस्टली ऑलवेज एसोसिएटेड विद द ट्रिगर जोन सिमुलेटेड ऑन विच इनिशिएट्स अ पैरोक्सिम्स ऑफ पेन. बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव पीरियड्स और एपिसोड्स ऑफ पेन आने शुरू हो जाते हैं. द पेन इटसेल्फ इज
of a searing, stabbing, lancinating type, which may many times is initiated when patient touches the trigger zone, जो कि इस केस में आ रहा है कि पेशेंट जब शेव करने लग रहा है तो तब उसको हो रहा है. The trigger zone which precipitate the attack when touched are commonly on the vermilion border of the lips, the ala of the nose, the cheeks, around the eyes. The patient learns to avoid touching the skin over the trigger area and frequently go unwashed or unshaven for days so as to possibly stop the attack from triggering. In some cases, it is not necessary that the skin actually be touched to initiate the painful seizure. Exposure to a strong breeze or simply an act of eating and smiling has been known to precipitate the pain of trigeminal neuralgia. Next, grey colored pseudomembrane and loss of interdental papilla is seen in which disease? It is seen in trench mouth disease. Grey colored pseudomembrane. ठीक है. Acute necrotizing ulcerative gingivitis. It is a rare infectious disease of the gum tissue affecting 1% of the total population. ANUG is present as acute painful destructive ulceration and inflammation of interdental gum tissue. किसकी interdental gum tissue की बहुत ज़्यादा destructive painful acute inflammation हो जाती है. Necrotizing ulcerative gingivitis frequently occurs as an epidemic pattern sweeping through the groups of person close in contact. इसीलिए जब वर्ल्ड वॉर लगा था तो ट्रेंचेस के अंदर ये सभी सोल्जर्स में एक दूसरे से दूसरे सोल्जर तक पहुंच रही थी. दिस वॉज स्पेशली apparent during the World War I when Allied troops suffered severely from the disease. It was hence named as trench mouth disease. Originated since the disease was specially prevalent in the troops in the trenches. The disease is characterized by painful hyperemic gingiva. Painful hyperemic gingiva हो जाता है. And sharply punched out crater-like erosions. Punched out crater-like erosions are seen on the interdental papillae. ठीक है. और sudden onset होता है इसका बिल्कुल. The ulcerated remnants of the papillae and the free gingiva, it bleeds when touched. Bleeding on simple touching or simple probing initiate हो जाती है. And it is generally covered by greyish green necrotic pseudomembrane. Question: autosomal recessive immunodeficiency in which the patient has febrile illness and albinism. Albinism मतलब सारी स्किन जो है वो चिट्टी हो जाती है, बाल भी चिट्टे हो जाएंगे. That is in Chidak-Higashi syndrome. Alright, Chidak-Higashi syndrome is an autosomal recessive immunodeficiency disorder characterized by abnormal intercellular protein transport. Abnormal intercellular protein transport हो जाता है. This disease is characterized by immune deficiency, partial oculocutaneous albinism, easy bruisability and bleeding as a result of platelet deficient dense bodies formation. ठीक है, platelet deficient bodies बनना शुरू हो जाती हैं. The recurrent infections with neutropenia, impaired chemotaxis, bactericidal activity and abnormal NK function होता है. किलर सेल्स का फंक्शन जो है वो abnormal हो जाता है. ठीक है. बेसिकली जो स्किन है वो फेयर स्किन हो जाएगी, पेल रेटिना हो जाएगा, लाइट ब्लॉन्ड कलर की उसकी स्किन हो जाएगी या फिर सिल्वरी उसके बाल हो जाएंगे, फ्रॉस्टेड या सिल्वर कलर के बाल हो जाएंगे. दैट इज ऑक्यूलोक्यूटेनियस एल्बिनिज्म. मोस्ट पेशेंट्स डाई इन अर्ली चाइल्डहुड ड्यू टू ओवरवेलमिंग इन्फेक्शन. इतना इन्फेक्शन होता है कि अर्ली चाइल्डहुड में डेथ हो जाती है. हेमरेज हो सकती है या फिर लिम्फोमा लाइक प्रोसेस बन हो सकते हैं. ग्रेटर देन 50% ऑफ द पीपल डाई बिफोर द एंड ऑफ फर्स्ट डेकेड ऑफ लाइफ. This was about Chidak-Higashi syndrome. Next, Von Grauff are rich in which collagen? Von Grauff. Von Grauff is rich in type 3 collagen. किसके अंदर? Type 3 collagen में rich होता है. See, the mantle dentine is the name for first formed dentine in the crown underlying the dentino-enamel junction. Dentino-enamel junction के नीचे होते हैं mantle dentine. This zone below the DEJ is soft and thus provides a cushioning effect to the tooth. जो mantle dentine है वो cushioning effect provide करती है to the tooth. It is thus the outer or the most peripheral part of the primary dentine and is about 20 millimeters thick. The fibrils formed from this zone are perpendicular to dentino-enamel junction. जो fibrils बनते हैं they are perpendicular to dentino-enamel junctions of the mantle dentine, and the organic matrix is composed of larger collagen fibrils than are present in the rest of the primary dentine. जो रेस्ट ऑफ प्राइमरी डेंटिन की हम बात कर रहे हैं दैट इज सर्कमपल्पल डेंटिन. ठीक है, लार्जर डायमीटर होता है इसका जो मेंटल डेंटिन होती है जिसमें 0.1 टू 0.2 मिलीमीटर का डायमीटर रहता है मेंटल डेंटिन का. दिस इज ए गायरोफिलिक. एर गायरोफिलिक होती है मतलब सिल्वर स्टेन्ड होती है. दे आर नोन एज वॉन क्रॉफ फाइबर्स. सिल्वर स्टेन्ड फाइबर्स और ए gyrophilic fibers are known as von Grauff fibers. They contain mainly type 3 collagen. Von Grauff fibers के अंदर type 3 collagen होता है. Compared to circumpulpal dentine, mantle dentine is less mineralized.
नेक्स्ट, ऑन एस्पिरेशन ओनली द एयर इज देयर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? देखो, एस्पिरेशन में अगर सिर्फ एयर प्रेजेंट है तो दैट इज अ ट्रोमैटिक बोन सिस्ट। तो पूछना है कौन सी टाइप ऑफ सिस्ट है, तो ट्रोमैटिक बोन सिस्ट होती है। द ट्रोमैटिक बोन सिस्ट इज एन अनकॉमन लीजन ऑफ द जॉज, बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ सूडोसिस्ट owing its lack of the lining epithelial membrane। मतलब इसमें लाइनिंग एपिथेलियल मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। इट इज अ सूडोसिस्ट, ट्रोमैटिक बोन सिस्ट इज अ सूडोसिस्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज सोलिटरी बोन सिस्ट और हेमरेजिक सिस्ट और म्यूकस एक्सट्रावसेशन सिस्ट और यूनिकैमरल बोन सिस्ट, सिंपल बोन सिस्ट, इडियोपैथिक बोन कैविटी। क्या क्या नाम है इसके? सॉलिटरी बोन सिस्ट, हेमरेजिक सिस्ट, एक्सट्रावसेशन सिस्ट, यूनिकैमरल बोन सिस्ट, simple bone cyst, idiopathic bone cavity cyst. It is an empty cavity and reveals only air on aspiration। एक सिर्फ empty cavity की formation हो जाती है और सिर्फ air होती है इसके अंदर जब हम aspirate करते हैं with the help of syringe। When the cavity is opened surgically, it is found to contain either small amount of serosanguinous fluid, मतलब blood related fluid होता है। If we explain the serosanguinous fluid, it is a normal, clear, thin, watery fluid that leaks from the wound during healing। ठीक है, जिसमें प्लाज्मा सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, दैट इंडिकेट्स द साइंस ऑफ टिश्यू रिपेयर। ऑलराइट, इसमें कभी कभार ब्लड भी आ जाता है, सीरस एक्सुडेटी में कभी कभार ब्लड भी दिखाई देता है। दैट गिव्स इट्स पिंक और पेल रेड कलर मिक्स, मतलब ऐसा कलर आता है इसके अंदर। अलॉन्ग विद सीरोसैंगुइनस फ्लूइड्स देयर आर फ्रेगमेंट्स ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और the cavity could be having nothing in it. The dentist is frequently astonished to open an empty space in the bone and find that it has no clinically demonstrable membrane। कभी कभार जो है एकदम जब कैविटी को ओपन करते हैं तो हम खुद चकित रह जाते हैं कि इसके अंदर सच में कुछ नहीं है या एक खाली कैविटी प्रेजेंट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ क्लेफ्ट लिप? सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म ऑफ क्लेफ्ट लिप इज यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड की प्रिडिलेक्शन इज ट्वाइस एज कॉमन एज कम्पेयर टू राइट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड ज़्यादा इफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू राइट साइड। नेक्स्ट, विद एजिंग इन द जिंजाइवा व्हाट इज सीन? With aging in the gingiva, there is increase in the width of attached gingiva. The width of attached gingiva increases by the age of 4 years, and in supraeruptive teeth, the width of attached gingiva increases. Next, the label area on the occlusal surface of the molar represents what? ये जो ridge है, इसका नाम पूछ रहा है ये. This is a transverse ridge. What is it? It is transverse ridge. When the buccal and lingual triangular ridges they join, they form a transverse ridge. The transverse ridge is a union of two triangular ridges. दो triangular ridges का जो union होता है, that is crossing transversely at the surface of the posterior tooth, उसको हम कहते हैं transverse ridge. Next, cementum outline is distorted, and cemental repair to establish new outline is known as anatomic repair. अगर हम पूरी cemental की outline को restore कर रहे हैं तो that is the anatomic repair. Anatomic repair is a type of cemental repair that can be used to reconstruct the root contour of a tooth that has been damaged. All right, in anatomic repair, the reparative cementum is used to completely repair the surface of resorption that is occurred. ठीक है, जिसको हम resorptive lacuna भी बोलते हैं. ठीक है, जो resorption अगर करिए वहाँ पे resorptive lacuna वर्ड भी यूज किया जाता है. Next, sequence of shedding in maxillary primary teeth is what? Sequence of shedding होती है A, B, D, E and then C. All right, canine सबसे लास्ट में, सबसे पहले इंसाइजर जाते हैं, उसके बाद जाता है लेटरल इंसाइजर, फिर जाता है डेसिड्यूस का डी, दैट इज फर्स्ट प्राइमरी मोलर, फिर जाता है सेकंड प्राइमरी मोलर, और फिर लास्ट में हमारे पास जाता है डेसिडस कैनाइन. नेक्स्ट, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम कंप्राइजेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स? स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम में स्ट्रेटम बेसेल होता है प्लस पैराबेजल लेयर्स होती है. ठीक, जो बेसेल लेयर होती है टोटल इसमें जंक्शनल एपिथेलियम में, उसमें स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम आ जाता है प्लस स्ट्रेटम बेसेल आ जाता है. ठीक है, जंक्शनल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ टू जोन्स. First zone is a cell layer of cuboidal cells that is called as stratum germinativum. इसमें cuboidal cells है सारे. ये cuboidal cells several layer of flattened cells के ऊपर present होते हैं. ठीक है, और ये flattened layer of cells होती है that is equivalent to stratum spinosum. ठीक है, ये जंक्शनल एपिथेलियम की बात हो गई. जंक्शनल एपिथेलियम में कोई भी स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम या फिर स्ट्रेटम कॉर्नियम नहीं होता है, ना ही स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम होगा, ना ही स्ट्रेटम कॉर्नियम होगा जंक्शनल एपिथेलियम के अंदर. नेक्स्ट, एपिथेलियम ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ इज व्हाट? Epithelium of floor of the mouth is non-keratinized because its embryological development is so. ठीक है, the type of epithelium that covers the lining mucosa of the floor of the mouth is non-keratinized stratified squamous epithelium. Next, the maximum dose of epinephrine that can be given to the patient having angina or chest pain is how much? देखो, we can give 0.04 milligram, that is the maximum dose.
According to American Health Association and American Dental Association guidelines, there is no contraindications to using a vasoconstrictor agent when carefully administered with preliminary aspiration. The maximum dose of epinephrine in local anesthetic for a healthy subject is 0.2 milligram. Okay? And though this can be lowered to 0.04 milligram if the patient is having severe cardiovascular diseases. Okay? ठीक है, मैक्सिमम डोज हमारे पास होती है 0.2 मिलीग्राम, और अगर किसी पेशेंट में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का खतरा हमें लग रहा है तो वहाँ पे हम देते हैं 0.04 मिलीग्राम. नेक्स्ट, द एस्पिरेशन ऑफ ट्रोमैटिक बोन सिस्ट यूजुअली यील्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग. ट्रोमैटिक बोन सिस्ट के अंदर एक एम्प्टी सिरिंज आती है, कोई भी एस्पिरेट बाहर नहीं आता या फिर एयर ही बाहर आती है. Traumatic bone cysts are known as simple bone cysts and they are often devoid of any fluid. Alright. Aspiration yields no fluid or scant amount of blood. This helps to differentiate it from other jaw cysts which usually contain fluids. Next, which of the following is characteristic feature of Turner tooth? Turner tooth में enamel hypoplasia is there, affecting only a single tooth. ठीक है. At a time, टर्नर टूथ में सिर्फ एक लोकलाइज सिंगल टूथ अफेक्टेड होता है. टर्नर टूथ अकर्स ड्यू टू लोकलाइज इनेमल हाइपोप्लेजिया अफेक्टिंग अ सिंगल परमानेंट टूथ, ऑफन कॉज्ड बाय ट्रॉमा और इन्फेक्शन ऑफ द ओवरलाइंग प्राइमरी टूथ. ओके, अगर कोई डेसिडस के ऊपर हमारा कोई ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से टूथ बग्ड जो परमानेंट का है वो इफेक्ट हुआ है, तो वहाँ पे टर्नर टूथ देखा जाता है जिसमें लोकलाइज एक सिंगल टूथ के अंदर इनेमल हाइपोप्लेजिया देखा जाएगा, जो टूथ का जो बड है जो अफेक्ट हुआ है बाय द ट्रॉमा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टोरोडोंटिज्म. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? इन टोरोडोंटिज्म देयर इज इंक्रीज्ड साइज ऑफ पल्प चैम्बर, देयर आर शॉर्टेंड रूट्स इन टोरोडोंटिज्म, देयर इज apically displaced furcation in torodontosm, all right, but there is no increased occlusal surface area. Occlusal surface area is normal, जितना दूसरे दांतों का है उतना ही रहेगा. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है कि हमारा जो occlusal surface area वो अनचेंज रहेगा. all right, it cannot increase. Torodontism is a condition where the pulp chamber is enlarged and the furcation is apically displaced, but it does not lead to increased occlusal surface. Next, a patient complains of pain while closing the mouth and side-to-side jaw movements. Which of the following is muscles is most likely to be involved? देखो, closing of the mouth के बारे में बात हो रही है, means elevation of the mandible के बारे में बात हो रही है. ठीक है, and it also says कि side-to-side movement है. Side-to-side movements कौन करवाता है? Medial pterygoid and lateral pterygoid मिलकर. ठीक है, लेकिन एलिवेशन की बात हो रही है, क्लोजिंग की बात हो रही है, तो लेटरल टेरिगॉइड तो हमारा रूल आउट हो गया क्योंकि लेटरल टेरिगॉइड ओपनिंग में हेल्प करता है. सो आंसर विल बी मीडियल टेरिगॉइड मसल. द मीडियल टेरिगॉइड असिस्ट जॉ क्लोजर, दैट इज एलिवेशन ऑफ द मैंडिबल, एंड द लेटरल मूवमेंट्स, दैट इज साइड टू साइड मूवमेंट्स, मेकिंग इट लाइकली इन्वॉल्व इन द पेन ड्यूरिंग दीज एक्शंस. नेक्स्ट, अ पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग पेन while biting down forcefully. Which of the following is least likely to be involved? जो वो बाइट डाउन कर रहा है, मतलब बाइट करने के टाइम क्या हो रहा है कि वो मैंडिबल को एलिवेट करवा रहा है, ऊपर की तरफ फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है. ठीक है, तो कौन सा मसल इन्वॉल्व नहीं होगा? जो मसल ओपनिंग में इन्वॉल्व होता है वो इन्वॉल्व नहीं होगा, लेटरल टेरिगॉइड इन्वॉल्व नहीं होगा. ठीक है, टेम्पोरलिस कुड बी इन्वॉल्व, मैसेटर कुड बी इन्वॉल्व, मीडियल टेरिगॉइड कुड बी इन्वॉल्व, क्योंकि ये सारे एलिवेशन में हेल्प कराते हैं, मैंडिबल के क्लोजर में हेल्प कराते हैं. लेटरल टेरिगॉइड जो है वो प्राइमरली फंक्शन क्या करता है? वो ओपनिंग में हेल्प कराता है. ठीक है, और प्रोट्रूजन में हेल्प करता है, मैंडिबल को आगे ले जाने में हेल्प कराता है. लेटरल टेरिगॉइड क्लोजर में हेल्प नहीं कराता है. सो इट इज़ लीस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व. नेक्स्ट, इन इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट विच एंटीफंगल इज प्रेफर्ड फॉर सीवियर ओरल कैंडिडियासिस. अगर सीवियर ओरल कैंडिडियासिस है और इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, दो चीज़ें याद रखनी है इसमें, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज एंड सीवियरली ओरल कैंडिडियासिस, तो वी विल गिव फ्लूकोनाजोल. फ्लूकोनाजोल दिया जाता है. ओके, स्पेशली इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जैसे कि HIV या फिर एड्स वाले पेशेंट है या फिर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट या कीमोथेरेपी वाला पेशेंट है, तो ओरल फ्लूकोनाजोल इज प्रेफर्ड फॉर द सिस्टमिक ट्रीटमेंट ऑफ दिस इन्फेक्शन. अब नाम से पता चल रहा है फ्लूकोनाजोल, तो इट इज गिवन फॉर फंगल इन्फेक्शंस. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोलेजन फाइबर्स आर डिफेक्टिव इन ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा. ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स, टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स आर अफेक्टेड इन ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा. Type 1 collagen is the major component of bone, skin, tendons. Alright. Defect in type 1 collagen fibers causes bone fragility in osteogenesis imperfecta. Next, which of the bacterial groups play a crucial role in pathogenesis of acute necrotizing ulcerative gingivitis? तो आंसर है spirochetes plus fusobacteria. ठीक, the spirochetes and fusobacteria, they are mixed anaerobic infection bacteria.
ठीक है। ये दोनों जो है वो एनग में बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। स्पायरोकीट्स में भी ट्रिपोनेमा डेंटिकोला और फ्यूजोबैक्टीरियम न्यूक्लिएटम फ्यूजोबैक्टीरिया का, ठीक है, फ्यूजोबैक्टीरियम न्यूक्लिएटम फ्यूजोबैक्टीरिया का, और स्पायरोकीट्स में से ट्रिपोनेमा डेंटिकोला, ये दोनों ही एनग में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं एनग के कॉज में। नेक्स्ट, पेशेंट प्रेजेंट्स विद ब्लू स्क्लेरा, ब्रिटल बोन्स and hearing loss. The following clinical findings are characteristic of which disorder? So this is characteristic of osteogenesis imperfecta. Osteogenesis imperfecta is a collagen disorder affecting bone strength. Blue sclera देता है, hearing loss करवा देता है। Hearing loss, blue sclera and bone strength loss हो जाता है, और bone strength loss होने की वजह से there is multiple fractures in the body, and these fractures can be classified as pathological fractures due to osteogenesis imperfecta. Next, a 35-year-old HIV positive male with a CD4 cell count that is 40 cells per microliter presents with headache, fever and confusion. India Inc. preparation of the CSF reveals capsulated yeast in the CSF. The most likely the organism that is to be present is what? जो capsulated yeast CSF के अंदर मिला है, that is most likely to be Cryptococcus neoformans, ठीक है। कैप्सुलेटेड चीज़ है तो याद रखना कोकस वाली चीज़ें सिलेक्ट करनी है, कोकस दैट इज कैप्सुलेटेड, ऑलराइट। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस इज मोस्ट कॉमन इन एड्स पेशेंट विद द CD4 सेल्स लेस देन 100 सेल्स पर माइक्रोलीटर, ठीक। CD4 सेल्स इस केस में 40 सेल्स थे, तो 100 से कम हुआ तो वी विल गो फॉर क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। डायग्नोसिस इज बाय इंडिया इंक स्टेन एंड क्रिप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट, क्रिप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट। इसके साथ साथ CSF कल्चर भी करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद द नेटल टीथ? नेटल टीथ में रिगा फेडा डिजीज जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, इट्स द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। नेटल टीथ और नियोनेटल टीथ कैन कॉज अल्सरेशन ऑन वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग ड्यू टू द फ्रिक्शन फ्रॉम द टीथ प्रेजेंट, ठीक है, दैट इज नोन एज रिगा फेडे डिजीज। यहाँ नेटल टीथ का मतलब होता है कि जो बर्थ के साथ प्रेजेंट है, मतलब बच्चा पैदा होने के साथ ही वो दांत प्रेजेंट है। नियोनेटल, नियोनेटल देखो, नियो से याद रखना, नियो को उल्टा करना है, ONE, 1 मंथ जब हो जाएगा बच्चे का, मतलब फर्स्ट 30 डेज के अंदर जो दांत निकल रहा है, इमर्ज कर रहा है या इरप्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज नियोनेटल टीथ, और नेटल टीथ होगा दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ओरल मैनिफेस्टेशंस आर मोस्ट कॉमनली सीन इन हाइपरपैराथायरॉयडिज्म? हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में देयर इज लॉस ऑफ लमाइना ड्यूरा, ऑलराइट। ओरल मैनिफेस्टेशंस ऑफ हाइपरपैराथायरॉयडिज्म इंक्लूड फर्स्ट loss of lamina dura due to the bone resorption, ड्यू टू बोन रिजॉर्प्शन लॉस ऑफ लमाइना ड्यूरा हो जाता है। ब्राउन ट्यूमर्स हो जाते हैं इसके साथ, ब्राउन ट्यूमर्स, दैट इज लोकलाइज्ड रेडियोलुसेंसिस ऑफ द जॉ। इसके साथ देयर इज डिलेड टूथ इरप्शन इन चिल्ड्रन, ऑलराइट, क्योंकि बोन में जो कैल्शियम का लेवल है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। सो देयर इज डिलेड टूथ इरप्शन इन द चिल्ड्रन, एंड दिस इज ऑल इन हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। Next, which of the following is not a characteristic feature of primary hyperparathyroidism? Not a feature, not a feature में आता है increase serum phosphate levels. Serum phosphate level increase नहीं करते हैं, ठीक है। क्या क्या फीचर्स होते हैं प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के? फर्स्ट, सीरम कैल्शियम लेवल्स जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं, सीरम फॉस्फेट लेवल्स डिक्रीज कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि रीनल फॉस्फेट वेस्टिंग जो है वो ज़्यादा हो जाती है, रीनल रूट से फॉस्फेट जो है वो ज़्यादा बाहर निकलना शुरू हो जाता है, तो सीरम फॉस्फेट लेवल्स विल डिक्रीज नॉट इंक्रीज। सब पेरियोस्टल रिजॉर्प्शन हो जाती है सीन इन phalanges एंड स्कल, ऑलराइट, एंड देयर इज ब्राउन ट्यूमर्स, दैट इज रेडियोग्राफिक प्रेजेंटेशन में देयर विल बी सिस्टिक बोनिंग लीजन्स। Next, a steel grey line on the gingiva is seen due to chronic heavy metal exposure, that is called as what line? It is known as Burton's line, and that is due to the lead poisoning. ठीक है, that is bluish grey line seen on the gingival surface. It results due to interaction between lead and hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide कहाँ से बनता है? From the oral bacteria. ठीक है, अब हाइड्रोजन सल्फाइड और लेड जब मिल जाता है तो इट विल फॉर्म लेड सल्फाइड, ठीक है। ये लेड सल्फाइड जो है डिपॉजिट होके ब्लूइश ग्रे लाइन बनाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल ऑर्थोगोनैटिक सर्जिकल प्रोसीजर? 4 प्रोसीजर दिए हैं, वाइडनिंग ऑफ मैक्सिला, मैंडिबुलर सेटबैक, मैक्सिलरी सुपीरियर पोजिशनिंग एंड मैंडिबुलर एडवांसमेंट। इनमें से जो वाइडनिंग ऑफ मैक्सिला होता है दैट इज द लीस्ट स्टेबल ऑर्थोगोनैटिक सर्जिकल प्रोसीजर। लेट्स डिस्कस द हायरार्की ऑफ स्टेबिलिटी। अगर मैंडिबल को पीछे लेके जा रहे हैं, मैक्सिला को डाउन लेके आ रहे हैं और मैक्सिला को वाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, सो
प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है, मतलब स्टेबल पॉइंट से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ जाता है एंड इट इज़ लेस स्टेबल। ऑलराइट, ये वापस अपनी जो जगह है पुरानी वाली जगह उस पर जाने के लिए टेंडेंसी रखेगा। ठीक है, नॉर्मल में हमारे पास आता है मैक्सिलरी अप, मैंडिबुलर फॉरवर्ड, मैक्सिलरी फॉरवर्ड, मैंडिबुलर बैकवर्ड, मैंडिबुलर एसिमेट्री के केसेस में इट इज स्टेबल बट रिजिड फिक्सेशन के जरिए ही वो स्टेबल रहता है। ठीक है, इफ मैक्सिला इज ब्रॉट फॉरवर्ड और मैक्सिला की एसिमेट्री है अगर मैंडिबल के साथ, तो उसको मैक्सिला को हम आगे लेके आ रहे हैं, सो दैट इज रिलेटिवली स्टेबल। ऑलराइट, एंड इफ मैक्सिला इज brought up, mandible is brought forward and chin in any direction is modified, that is a very stable structure. ऐसी कंडीशन जहाँ पे एक साइड का यूनिलेटरल हाइपरप्लेजिया हो जाता है, ठीक है, चाहे कोई भी रीज़न रहे, कोई ट्रॉमा रहा हो, कुछ भी रहा हो, वहाँ पे हम चिन को जो है वो नॉर्मल अगर बीच की पोजीशन में ले आए तो वो एक बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है। कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आती है? मैंडिबल को पीछे लेके जाने में, मैक्सिला को नीचे लेके आने में और मैक्सिला को वाइड करने में। Next, which of the following bacterial species is not typically involved in acute necrotizing ulcerative gingivitis? What is involved उसके बारे में बात करते हैं पहले। Privotella intermedia is involved, Fusobacterium nucleatum is involved, Treponema denticola is involved. Alright, जो चौथा ऑप्शन है हमारे पास that is Agrobacter Actinomycetes comitans. It is more commonly linked to aggressive periodontitis. जो aggressive form of periodontitis होती है उसमें Agrobacter Actinomycetes comitans जो है वो involved होता है। ठीक है, but in ANAG, acute necrotizing ulcerative gingivitis, this Agrobacter Actinomycetes comitans is not so commonly involved. Next, beveling at the cavo-surface margin primarily increases the retention by what? It increases the retention by creating more surface area for adhesion of the molecules. Beveling will expose more enamel rods, thus enhancing the bonding surface for better adhesion. Alright, and beveling does not directly affect the chemical bonding or polymerization shrinkage, it only affects the surface area. Next, which of the following techniques best achieve a smooth blended transition between the composite and tooth structure in anterior restorations? ठीक है, अगर हम एक लॉन्ग बेवल बनाते हैं एट द ब्रोकन एरिया, वहाँ पे एक स्मूथ ब्लेंडेड ट्रांजिशन हम कॉम्पोजिट और टूथ स्ट्रक्चर के बीच में अचीव कर सकते हैं। अ लॉन्ग बेवल दैट इज 1 to 2 millimeter thick creates a gradual color transition, reducing visible margins between the tooth and the composite material. Next, a bevel is given in the anterior aesthetic composite restoration at a cavus surface margin. Function of bevel is what? Function of bevel हमने अभी बात की, it is to enhance the micromechanical bonding by increasing the surface area. Let's go with the theory. A bevel is applied to the cavo surface margin in anterior aesthetic composite restorations primarily to increase the surface area available for bonding. This enhances the micromechanical retention by exposing more enamel rods, allowing better penetration of the adhesive system and composite material. While other benefits such as improved aesthetics, transition of restoration, they may occur, the primary purpose of bevel is to optimize the bond strength by increasing the surface area. Next, fluoride deficiency primarily affects which component of the tooth? Fluoride deficiency primarily affects the enamel component of the tooth because it weakens the enamel, making it more prone to caries, क्योंकि यहाँ पे फ्लोर एपेटाइट की फॉर्मेशन नहीं होती। Next, Miller's foci is seen in what kind of caries? Miller's foci is seen in dentinal caries. Development of Miller's liquefaction foci occurs in advanced dentinal caries. एडवांस डेंटिनल केस में ये चीज़ देखी जाती है। Decalcification of tubule walls leads to their merging, while the organic matrix remains intact temporarily in a Miller's liquefaction foci. Liquefaction foci described by Miller are the ovoid areas of destruction filled with necrotic debris. Alright, ये destruction किसकी हो रही है? Dentinal destruction हो रही है। ठीक है, These foci expand, compress and distort the adjacent tubules, bending their course and leading to dentinal foci और dentinal caries. Advancement, all right, इन सारी चीज़ों का advancement हो जाता है। Next, type 2 respiratory failure is characterized by what? Type 2 respiratory failure is characterized by hypoxemia plus hypercapnia. Hypoxemia का मतलब होता है ऑक्सीजन के लेवल्स कम हो जाते हैं, हाइपरकैपनिया का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। Type 2 respiratory failure is also called as hypercapnic respiratory failure and is associated with hypoxia with hypercapnia. Alright, सारे respiratory failures को एक बार डिस्कस करते हैं।
टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर इज नोन एज हिपोक्सिमिक रेस्पिरेटरी फेलियर। जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, दैट इज लेस देन 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। कार्बन डाइऑक्साइड इतनी एलिवेट नहीं होती, लेकिन पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का लेस देन 60 प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है टाइप 2 की, दैट इज हाइपर कैप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर। फर्स्ट वन वाज हाइपोक्सीमिक रेस्पिरेटरी फेलियर, टाइप 2 इज हाइपर कैप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर, जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लो होता है, दैट इज लेस देन 50, और कार्बन डाइऑक्साइड का एलिवेट हो जाता है, दैट इज ग्रेटर देन 60 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। ऑलराइट, टाइप 3 इज पर ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी फेलियर। टाइप 3 इज पर ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी फेलियर। इसमें फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो है वो फॉल कर जाती है, ठीक है। इट फॉल्स बिलो द क्लोजिंग वॉल्यूम एज अ रिजल्ट ऑफ एटेलेक्टेसियास। एटेलेक्टेसिया मतलब कि पार्शियल या कंप्लीट कोलैप्स ऑफ द लंग हो जाता है या पार्ट ऑफ द लंग हो जाता है, जहाँ पे टाइनी एयर सैक्स और एल्वियोलाई जो होते हैं वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज जो है वो ढंग से नहीं हो पाता, जो कि ब्लड में अब ऑक्सीजन नहीं जा पाती है, ठीक है। द कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स इन पर ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी फेलियर आर सुपाइन पॉस्चर, जनरल एनेस्थीसिया, डिप्रेस्ड कफ रिफ्लेक्स एंड स्प्लिंटिंग ड्यू टू पेन। नेक्स्ट इज टाइप 4 रेस्पिरेटरी फेलियर। टाइप 4 रेस्पिरेटरी फेलियर इज शॉक विद हाइपोपरफ्यूजन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रोपोर्शन ऑफ द कार्डियक आउटपुट का प्रोपोर्शन रेस्पिरेटरी आउटपुट के कंपैरिजन में 10 टाइम्स हो जाता है। क्योंकि रेस्पिरेशन कम है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ा के बॉडी की ऑक्सीजन की डिमांड पूरी की जा रही है, ठीक है। अब इतना रेस्पिरेटरी आउटपुट कम हो जाता है कि इतनी बंदा स्लो रेस्पिरेशन करना शुरू कर देता है कि ऑक्सीजन इतनी नहीं रहती कि वो हार्ट को सप्लाई हो पाए। हार्ट अपने मस्कुलेचर को ढंग से ऑक्सीजन नहीं सप्लाई कर पाता। अब हार्ट को ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हार्ट आउटपुट नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो जो ब्लड आउटपुट है वो हार्ट का कम हो जाएगा, दैट इज शॉक विद हाइपोपरफ्यूजन, दैट इज टाइप 4 रेस्पिरेटरी शॉक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशंस इज ऑफन रिक्वायर्ड फॉर अ कम्प्लेक्स कैविटी प्रिपरेशन। कम्प्लेक्स कैविटी प्रिपरेशन में देयर शुड बी एडिशन ऑफ रिटेंशन ग्रूव्स और रिटेंशन स्लॉट्स। Complex cavities often require extra retention due to the extensive lot of tooth structure due to caries or any other reason. इसमें हम देते हैं secondary retentive features such as retentive grooves, retentive slots, pins that may be used to improve the mechanical retention and resistance form of the cavity preparation. Next, what is the recommended speed for polishing discs on composite restorations? हमारे पास low speed with light pressure. That is the true answer. That is the recommended speed for polishing disc on composite restorations. Because there are some factors that we need to take care of. हमें less heat generation चाहिए, हमें less micro cracks चाहिए, हमें इंश्योर करना है कि जो हमारा सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ हो, पॉलिश्ड हो विदाउट डैमेजिंग द कॉम्पोजिट। इसीलिए वी गो फॉर लो स्पीड एंड वेरी लाइट प्रेशर अलॉन्ग विथ सम पॉलिशिंग अब्रेसिव। ऑलराइट, जैसे डायमंड डस्ट पॉलिशिंग अब्रेसिव्स आते हैं या फिर कोई भी पॉलिशिंग अब्रेसिव जो आप यूज़ कर रहे हो, वो जितना फाइन होगा उतना बेटर पॉलिश होगा। नेक्स्ट, इन सॉकेट शील्डिंग प्रिपरेशन द मोशन recommended for cutting the post for decoronation of shield preparation is what? It is sweeping motion. ऑलराइट, जब हमारी बक्कल बोन बहुत ज़्यादा कम होती है तो हम पार्ट ऑफ द टूथ की रूट, जो नॉर्मल टूथ है मतलब उसकी रूट को हम छोड़ देते हैं। ऊपर का दांत उठ चुका है लेकिन रूट बिल्कुल नॉर्मल थी, तो वहाँ पे हम एक पार्ट ऑफ द रूट को छोड़ देते हैं ताकि ये बक्कल बोन की थोड़ी सी जो थिकनेस है वो मोटी की जा सके, ठीक है। तो दिस प्रोवाइड्स अ शील्ड फॉर द बक्कल बोन। ओके, so while preparing the shield the cut is gradually advanced by sweeping motion apically on the palatal side. हम स्वीपिंग मोशन से apically to the palatal side जाते हैं ताकि मैक्सिमम बोन जो यहाँ पे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, जो कि रूट की बोन है, ठीक है, उतनी हम प्रिवेंट या फिर उतनी हम प्रिजर्व कर सकें। ग्लकमैन एट अल अ डेकेड ऑफ सॉकेट शील्ड टेक्निक स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल में ये जो स्वीपिंग मोशन है ये लिखा हुआ है उसमें। नेक्स्ट, इन HA कोटिंग ऑन द surface of TSV MP1 HA implant have been shown to enhance what? HA implant ने दिखाया था there is osteoconduction increase. HA coating जब हम करते हैं तो HA coating means hydroxy apatite crystal coating, ठीक है, क्रिस्टल नहीं बोलेंगे लेकिन हाइड्रोक्सी एपेटाइट कोटिंग होती है। ये टाइटेनियम इम्प्लांट के ऊपर की जाती है सो दैट द इम्प्लांट इंक्रीजेज द ऑसियो कंडक्शन। ऑलराइट, ऑसियो कंडक्शन इंक्रीज करवाता है, ना ही ऑसियो इंडक्शन, ना ही ऑस्टियोजेनेसिस, ऑसियो कंडक्शन इंक्रीज होती है। स्पेसिफिकली द हाइड्रोक्सी एपेटाइट कोटिंग ऑन TSV MP1 HA इम्प्लांट, ये कोड नेम दिया हुआ इम्प्लांट का, इट हैज़ बीन शोन टू एनहांस द ऑस्टियो कंडक्शन प्रोसेस
that is proposed to improve the implant anchorage. Implant की anchorage improve हो रही है in the bone by rendering the formation of biologically active hydroxyapatite. Bone में biologically active hydroxyapatite बन रहा है जिससे anchorage increase कर रही है. इसके साथ साथ there is increased osteoblastic adhesion. Osteoblast ज़्यादा adhesion होंगे तो there will be more bone formation. That is also observed in patients with increasing the calcium amount present in the outer oxide layer of hydroxyapatite coated implants. ठीक है. Next, the organism of infective prosthetic valve in endocarditis patients is which organism? तो organism होता है coagulase negative Staphylococcus aureus जो कि infective prosthetic valve endocarditis cause करता है. In prosthetic valve endocarditis, it is commonly defined as early or late. प्रोस्थेटिक वाल्व एंडोकार्डाइटिस अगर 12 महीने के अंदर जो सर्जरी हुई है, मतलब सर्जरी के 12 महीने के अंदर ही प्रोस्थेटिक वाल्व एंडोकार्डाइटिस अकर कर रहा है तो उसे कहते हैं अर्ली एंडोकार्डाइटिस, अर्ली प्रोस्थेटिक वाल्व एंडोकार्डाइटिस. अगर 12 महीने के बाद अकर कर रहा है तो दैट इज नोन एज लेट प्रोस्थेटिक वाल्व एंडोकार्डाइटिस. 1 to 6% of all the patients with heart valve prosthesis are diagnosed with prosthetic valve endocarditis, and over 20% of all the cases of infective endocarditis, they are classified as प्रोस्थेटिक वाल्व एंडोकार्डाइटिस. ठीक है. टोटल इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के जितने भी केसेस होते हैं उनमें से 20% केसेस जो होते हैं वो प्रोस्थेटिक वाल्व एंडोकार्डाइटिस के होते हैं. मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ प्रोस्थेटिक वाल्व एंडोकार्डाइटिस आर रिपोर्टेडली कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. कॉजेटिव एजेंट कौन है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. एंड सेकंड ऑर्गेनिज्म इज कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई. कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई ये सेकंड कॉमनेस्ट ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोस्थेटिक वाल्व एंडोकार्डाइटिस कॉज करता है. अर्ली प्रोस्थेटिक वाल्व एंडोकार्डाइटिस इज ऑफन कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंडिकेटिंग नोजोकोमियल इन्फेक्शन. नोजोकोमियल इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होता है जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, सच एज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, CONS दैट इज कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड फंगाई. ठीक है. जबकि लेट केसेस जो होते हैं प्रोस्थेटिक वाल्व एंडोकार्डाइटिस के वो यूजुअली बैक्टीरिया जैसे कि अल्फा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई और कोएगुलेज नेगेटिव स्ट्रेप्टोकोकाई कॉलोनाइजिंग इन वेरियस बॉडी सर्फेसेस उनसे होता है. ठीक है. अर्ली में कौन कौन है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, कॉन्स दैट इज कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड फंगाई दैट आर प्रेजेंट इन द हॉस्पिटल ओनली. ये हॉस्पिटल में ही हो जाता है लगभग. नोजोकोमियल इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होते हैं. लेट स्टेजेस में अल्फा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई एंड कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई जो कि बाकी बॉडी के सरफेस पे कहीं पे कॉलोनाइज हो रहे हैं वहाँ से माइग्रेट करके प्रोस्थेटिक वाल्व एंडोकार्डाइटिस कर सकते हैं. अगर कहीं पे भी कोई चीज़ की कमी होती है तो इम्यूनिटी डाउन जाती है या कोई माइनर सर्जरी होती है या कोई ट्रॉमा होता है उससे ट्रैवल कर सकता है बैक्टीरिया. नेक्स्ट, हाइड्रोक्सीएपेटाइट कोटेड इम्प्लांट इज प्रेफर्ड ओवर नॉर्मल टाइटेनियम मशीन्ड इम्प्लांट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग केसेस एक्सेप्ट विच केस. देखो, फर्स्ट इज इन फ्रेश एक्सट्रैक्शन साइट ऑफ अपर लेफ्ट सेकंड मोलर. फ्रेश एक्सट्रैक्शन साइट में हम हाइड्रोक्सीएपेटाइट प्रेफर करेंगे. न्यूली ग्राफ्टेड साइट में भी हम हाइड्रोक्सीएपेटाइट प्रेफर करेंगे. नीड फॉर ग्रेटर बोन इम्प्लांट इंटरफेस कॉन्टैक्ट एरिया एज लॉन्ग टर्म इडेंचुलिज्म. ठीक है. लॉन्ग टर्म इडेंचुलिज्म में मैंडिबल बहुत ज़्यादा रिजॉल्व हो चुकी है या मैक्सिला बहुत ज़्यादा रिजॉल्व हो चुका है, वहाँ पे भी हम हाइड्रोक्सीएपेटाइट कोटेड इम्प्लांट जो है उसे प्रेफर करते हैं. फोर्थ आती है बात D1 बोन की. D1 बोन आपके एंटीरियर मैंडिबल में प्रेजेंट होती है तो वहाँ पे बोन पहले ही इतनी डेंस होती है कि उतना हाइड्रोक्सीएपेटाइट कोटिंग रिक्वायर्ड नहीं होती. सो वी डू नॉट प्रेफर हाइड्रोक्सीएपेटाइट कोटेड इम्प्लांट in D1 bone, that is in anterior mandible. The use of porous hydroxyapatite coating has definitely increased durability and biocompatibility of implant prosthesis since its introduction. The application of porous hydroxyapatite coating has enabled the biological fixation of cementless implants, allowing osseointegration of the prosthesis better. However, D1 being the densest bone in the oral cavity does not necessarily require hydroxyapatite coated implant, because it already has the strength to bear a normal titanium implant. तो बेफालतू के पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है. Next, the magnitude of crestal bone loss is often directly related to what? The magnitude of crestal bone loss is directly related to the distance between the crest module and the first thread distance. Between the crest module and the first thread distance. ये जो इम्प्लांट के थ्रेड्स होते हैं इसमें जो फर्स्ट थ्रेड है और क्रेस्ट का मॉड्यूल जो है इनके बीच का डिस्टेंस डिपेंड करता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है क्रेस्टल बोन लॉस.
और बुक की स्टेटमेंट भी यही है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रेस्टल बोन लॉस इज ऑफन डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट मॉड्यूल एंड द फर्स्ट थ्रेड डिस्टेंस। जो इम्प्लांट का फर्स्ट थ्रेड होता है वो बोन के लगभग पैरेलल आना चाहिए, ठीक है, ऐसे पैरेलल आना चाहिए थ्रेड बिल्कुल। और ये थ्रेड जो है ये एक 90 डिग्री के एंगल पे नहीं रहता है, यहाँ पे एक माइन्यूट अमाउंट ऑफ बोन रिजॉर्प्शन होती ही होती है। क्यों? क्योंकि बॉडी में कोई भी एंगल जो है किसी भी चीज़ का वो 90 डिग्री पे नहीं है बायोलॉजिकल टिश्यूज में, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस की कंसंट्रेशन हो जाती है, ठीक है। दैट इज वाई देयर इज अ मिनिमम रिजॉर्प्शन सो एज टू मेंटेन दिस क्रिस्टल बोन एट अ एंगल, एट अ स्मूथ एंगल, ठीक है, वो बॉडी खुद रिजॉर्प्शन करवाती है। Next, the crest module is said to have influence in all of these aspects. What are the aspects? Crest module have influence on surgical influence, biological width influence, loading profile consideration, and prosthetic influence. Hence, the design of the portion of the implant plays a very critical role for overall success of the implant. ठीक है, फर्स्ट थ्रेड हमारा इसके बोन, जो हमारी बोन है, कॉर्टिकल बोन है, उसके बिल्कुल पैरेलल जाना चाहिए और बाकी हिस्सा इसके ऊपर, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे बोन रिजॉर्प्शन शुरू हो जाएगी। दैट विल लीड टू अनवांटेड पेरियोडोंटल प्रॉब्लम्स इन द इम्प्लांट इन द अर्ली स्टेजेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल एसोसिएटेड डायरिया। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल जो है वो सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कर देता है, जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है, ऑलराइट। तो मेट्रोनिडाजोल इज यूजुअली यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस और द क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल एसोसिएटेड डायरिया। लेकिन वैंकोमाइसिन भी एक ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, जो कि आजकल यूज़ किया जा रहा है, पर वैंकोमाइसिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, मेट्रोनिडाजोल दिया हुआ है, तो वी विल गो विद मेट्रोनिडाजोल। नेक्स्ट, a 45-year-old woman with a history of diabetes presents with the symptom of suspected abdominal abscess. After diagnosis, the doctor prescribes metronidazole. The patient is informed that the drug targets the infection by disrupting the microbial DNA. ठीक है, which of the following conditions must be present for metronidazole to be effective against the infective organisms? ठीक है, जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे मस्ट अकर इन एनारोबिक एनवायरनमेंट, तभी मेट्रोनिडाजोल अपना एक्शन ढंग से कर पाएगा। बिकॉज मेट्रोनिडाजोल इज इफेक्टिव अगेंस्ट एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। एनारोबिक कंडीशंस के अंदर ड्रग इज रिड्यूस्ड टू जनरेट रिएक्टिव नाइट्रो रेडिकल्स। मेट्रोनिडाजोल एनारोबिक कंडीशंस में, मतलब ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशंस में नाइट्रो रेडिकल्स जो है उनको रिलीज करता है। ये जो नाइट्रो रेडिकल्स होते हैं ये डिसरप्ट करते हैं डीएनए स्ट्रक्चर को, क्योंकि डीएनए के ऊपर डायरेक्ट जाके डीएनए की ब्रेकेज करवा देंगे, जो बैक्टीरियल डीएनए उसको तोड़ना शुरू कर देंगे। कौन से स्ट्रक्चर्स? नाइट्रो रेडिकल्स, जो कि मेट्रोनिडाजोल ने रिलीज किए हैं इन द एनारोबिक कंडीशंस, ठीक है। और अल्टीमेटली ये बैक्टीरियल सेल डेथ करवा देगा, क्योंकि डीएनए ढंग से नहीं बनेगा तो प्रोटीन ढंग से नहीं बनेंगे, प्रोटीन ढंग से नहीं बनेंगे तो जो बाकी बैक्टीरिया का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो ढंग से नहीं बनेगा, जिसकी वजह से एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है जो कि इन्फेक्शन कॉज करवा रहा है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। विच इज़ वाई मेट्रोनिडाजोल शुड बी गिवन इन द पेशेंट जहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा है, एनारोबिक इन्फेक्शन के चांसेस में मेट्रोनिडाजोल को दिया जाता है। नेक्स्ट, a 35-year-old man presents with nicotine toxicity after ingesting a large amount of nicotine containing patches in a suicide attempt. Nicotine containing patches उसने ingest कर लिए हैं in the suicide attempt. He exhibits symptoms such as hypertension, tachycardia, nausea. Which of the following medications would help in managing the autonomic symptoms that are caused by nicotine toxicity? देखो निकोटीन कैसे काम करता है, ये बेसिकली जो निकोटीनिक रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर जाके बाइंड कर देता है, जिसकी वजह से गैंग्लियोनिक फायरिंग हो जाती है, पूरे न्यूरॉन्स जो है वो फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर जाता है, जिसमें हाइपरटेंशन हो जाती है, टैकीकार्डिया हो जाता है, ठीक है। दैट इज कॉज्ड बाय निकोटीन टॉक्सिसिटी और निकोटीन पॉइजनिंग। अब हमें क्या करना है कि हमें इस गैंग्लियन को ही ब्लॉक कर देना है, तो वी विल गिव ट्राइमेथाफैन, ट्राइमेथाफैन देते हैं। ट्राइमेथाफैन इज अ गैंग्लियोनिक ब्लॉकर जो कि ऑटोनॉमिक्स नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा उसको सप्रेस करता है, उसके गैंग्लियंस में जो फायरिंग हो रही है, न्यूरॉन्स की जो फायरिंग होती है वहाँ पे जाके बाइंड करके इस गैंग्लियोनिक फायरिंग को सप्रेस कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से ऑटोनॉमिक गैंग्लिया सप्रेस होगा और ऑटोनॉमिक जो सिम्टम्स है जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, टैकीकार्डिया हो गया, ये सब कम आएंगे। तो क्या यूज़ किया हमने? ट्राइमेथाफैन। Next, a 30-year-old patient is brought to the emergency department after being found unconscious at home. His family reports that the patient has a history of opioid use disorder, or he or she has likely overdosed on the dose of heroin.
ऑलराइट, तो मतलब ओपिएड ओवरडोज का केस आ गया। अटेंडिंग फिजिशियन ने डिसाइड किया कि उसे नैलॉक्सोन हाइड्रोक्लोराइड दी जाएगी टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ ओपिएड ओवरडोज। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ नैलॉक्सोन इन दिस केस? द प्राइमरी पर्पस ऑफ नैलॉक्सोन इज टू रिवर्स द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन दैट इज कॉज्ड बाय ओपियोइड ओवरडोज। कैसे करेगा? देखो, नैलॉक्सोन एक ओपियोइड एंटागनिस्ट है। ओपियोइड एंटागनिस्ट है मतलब ओपियोइड रिसेप्टर्स का जो काम है उसके अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। सो इट विल बाइंड कंपिटिटिवली टू द ओपियोइड रिसेप्टर्स, ठीक है। जो हीरोइन ली है उसके साथ कंपटीशन करके नैलॉक्सोन जो है बाइंड करेगा ओपियोइड रिसेप्टर्स के साथ, रिवर्सिंग द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दैट इज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ओपियोइड की वजह से हुई है, जो पॉइजनिंग की वजह से हुआ है, जो हीरोइन की वजह से हुआ है, उस डिप्रेशन को कम करेगा, ठीक है, ताकि बंदे का रेस्पिरेटरी सिस्टम चला रहे। रेस्पिरेटरी सिस्टम चला रहेगा तो ऑक्सीजन चली रहेगी, ऑक्सीजन चली रहेगी तो बंदे की जान बच जाएगी, ऑलराइट। और इसकी डोजेज जो है नैलॉक्सोन की वो थोड़ी थोड़ी देर बाद रिपीट करनी पड़ती है, ठीक है। वो डोज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपने कितनी डोज हीरोइन की कंज्यूम की है, उसके बेसिस पे नैलॉक्सोन की डोज जो है वो वेरी होती है। Next, a 38-year-old male patient undergoing treatment for leukemia with methotrexate has shown initial signs of improvement. However, after several cycles of chemotherapy, the patient's disease progresses despite ongoing treatment with methotrexate. Genetic testing is done. Which of the following mechanisms is most likely contributing to the patient's resistance to methotrexate? Here the answer is overproduction of dihydroxyfolate reductase, that is DHFR overproduction, that is associated with resistance of the patient to methotrexate. There are few common mechanisms of methotrexate resistance. सबसे पहले आता है impaired transport of methotrexate into the tumor cells और body cells. जब methotrexate transport ही नहीं हो पाएगा तो काम कैसे करेगा? Second is production of altered form of DHFR that have decreased the affinity for inhibitor. ठीक है, DHFR that is dihydrofolate reductase जब ओवर प्रोडक्शन हो जाती है उसकी, ठीक है, ये ऑल्टर्ड फॉर्म होती है जो कि डिक्रीज कर देती हैं मेथोट्रेक्सेट की एफिनिटी, मतलब बॉडी मेथोट्रेक्सेट की जगह DHFR कंज्यूम करना शुरू कर देगी। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेलुलर DHFR थ्रू जीन एम्पलीफिकेशन और ऑल्टर्ड जीन रेगुलेशन। जब डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो है वो इनसे ऑल्टर्ड जीन रेगुलेशन या एम्पलीफिकेशन की वजह से इंक्रीज कर जाती है, तब भी वो कॉम्पिटिटिवली मेथोट्रेक्सेट का एक्शन को कम कर देती है। Decreased ability to synthesize methotrexate polyglutamates, बॉडी जो है वो मेथोट्रेक्सेट पॉलीग्लूटामेट्स नहीं बना पाती क्योंकि वो ढंग से बाइंड ही नहीं कर पा रहा है अंदर जाके। इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ ड्रग इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर ऑफ द MRP क्लास, ठीक है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन जो होती हैं वो ड्रग का इफ्लक्स बढ़ा देती हैं, मतलब ड्रग को बॉडी से बाहर निकालना ज़्यादा शुरू कर देती हैं जब वो देखती हैं कि बॉडी के अंदर ड्रग जाके कई सेल्स को डैमेज कर रहा है। भले ही वो ट्यूमर सेल्स को डैमेज कर रहा है, लेकिन ये MRP जो है वो बॉडी की रेजिस्टेंस प्रोटीन होती है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन्स होती हैं जो कि ड्रग की इफ्लक्स बढ़ा रही हैं, ड्रग को बाहर जल्दी निकाल रही हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ मैकेनिज्म ऑफ मेथोट्रेक्सेट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, अ 62-year-old पेशेंट विद एट्रियल फिब्रिलेशन एंड अ हिस्ट्री ऑफ stroke is prescribed an oral anticoagulant for stroke prevention. The physician opts for rivaroxaban. rivaroxaban जो है फिजिशियन ने ऑप्ट करी है या फिर इसका ब्रांड नेम आ जाता है दैट इज एपिक्साबैन ओवर वारफेरिन। इन दोनों को प्रिस्क्राइब किया है ओवर वारफेरिन ड्यू टू देयर प्रेडिक्टेबल फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल्स एंड लैक ऑफ रूटीन मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट्स। इनमें रूटीन मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं होती जैसी वारफेरिन में रहती है, और इनकी प्रेडिक्टेबल फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ रिबॉक्सी एपिक्साबैन और रिवाऑक्साबैन, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ रहा है। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दीज टू ड्रग्स इज इनहिबिशन ऑफ फैक्टर 10A। फैक्टर 10A जो है उसको इनहिबिट करवा देता है। बोथ रिवारोक्साबैन एंड एपिक्साबैन आर डायरेक्ट oral anticoagulants, DOACs, direct oral anticoagulants that work by inhibiting the factor 10A. फैक्टर 10A को इनहिबिट करके काम करते हैं। फैक्टर 10A इज द की एंजाइम इन कोएगुलेशन कैस्केड, ये याद रखना है हमने, एंड इज इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। फैक्टर 10A जो है वो की एंजाइम है कोएगुलेशन कैस्केड में और प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाने में हेल्प करती है। अब थ्रोम्बिन नहीं बन पाएगा तो क्लॉट नहीं बन पाएगा, ठीक है, और इस तरह से ये एंटीकोएगुलेंट की तरह काम करेगा इन द पेशेंट विद एट्रियल फिब्रिलेशन एंड अ हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक। Next, a 40-year-old individual is diagnosed with myocardial infarction
for which his mitral valve replacement has been done. Later on, some of the vegetations were seen on the valve which were found to be immune complex depositions that are leading to endocarditis. Immune complex depositions valve के ऊपर बन गई थी जो कि endocarditis cause कर रही थी. This is a case of, the answer is Libman-Sachs endocarditis. Alright, Libman-Sachs vascular lesions are sterile fibrofibrinous vegetations that may develop anywhere on the endocardial surface. हार्ट के एंडोकार्डियल सरफेस पे लिबमैन सैक्स के वैल्वुलर लीजन्स जो होते हैं वो स्टेराइल फाइब्रोफाइब्रिनस वेजिटेशंस की फॉर्म में कहीं पर भी डेवलप कर सकते हैं विद द प्रोपेंसिटी फॉर लेफ्ट वैल्व्स. ठीक है, पर्टिकुलरली वेंट्रिकुलर सरफेस पे ज़्यादा डेवलप करते हैं रादर ऑफ द मिट्रल वेल्व. मिट्रल वेल्व के वेंट्रिकुलर सरफेस पे ज़्यादा इजीली डेवलप हो जाते हैं. दे आर सीन एज टिपिकली सेसाइल वॉट लाइक स्मॉल वेरिंग फ्रॉम पिन हेड साइज दैट इज 3 to 4 मिलीमीटर. ये वेजिटेशन जो होती हैं वो सेसाइल होती हैं, वॉट लाइक होती हैं, स्मॉल होती हैं और इनका पिन हेड साइज से लेकर 3 से 4 mm तक का साइज रहता है. हिस्टोलॉजिकली ज़्यादातर ये मिट्रल वाल्व पे देखा जाएगा. ठीक है, और ऐसे लीजन्स दिखाई देंगे, ऐसा एक वेजिटेशन दिखाई देगी एंडोकार्डियल सरफेस के ऊपर. नेक्स्ट, अ 60-year-old पेशेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज इज प्रिस्क्राइब्ड अ नसेड फॉर क्रोनिक पेन रिलीफ. What is most likely the consequence of treatment in this patient? देखो, नसेड्स जब भी हम देते हैं तो वो COX-1 COX-2 दोनों को इनिबिट कर देता है. COX-1 जो है वो म्यूकस प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन द GIT. अगर COX-1 इनिबिट होती है बाय द नसेड जो हमने दिया है तो देर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ अल्सर फॉर्मेशन एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग. Let's go with the exact mechanism. NSAIDs or non-steroidal anti-inflammatory drugs are known to exhibit or inhibit COX-1 or COX-2 enzymes, which are involved in the production of the prostaglandins. Prostaglandins help the mucosal lining in the stomach for their protection. ठीक है, ये बेसिकली गैस्ट्रिक म्यूकोजल डैमेज को प्रोटेक्ट करते हैं. अब अगर COX-1 COX-2 को कम कर दिया गया है, ये इनिबिट हो गई तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स इनिबिट हो जाएंगे. प्रोस्टाग्लैंडिन्स इनिबिट हो जाएंगे तो स्टमक की लाइनिंग में जो प्रोटेक्टिव एक्शन है वो भी इनिबिट कर जाएगा. दैट विल लीड टू इंक्रीज पेप्टिक अल्सर फॉर्मेशन एंड इंक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, स्पेशली इन द पेशेंट्स विद द हिस्ट्री ऑफ पेप्टिक अल्सर. Next, a 50-year-old patient with a history of muscular dystrophy is scheduled for surgical procedure under general anesthesia. Muscular dystrophy है याद रखना. ठीक है, तो respiratory system हमें maintain करके रखना है. The anesthesiologist plans to use succinylcholine choline. क्या use करने की सोच रहा है? Succinylcholine choline for rapid intubation. Which of the following is a potential risk associated with the use of succinylcholine choline in this patient? अगर हम succinylcholine choline use कर रहे हैं तो hyperkalemia, that is high levels of potassium, वो एक रिस्क रहता है इन पेशेंट्स में, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले पेशेंट्स में. लेट्स गो विद द थ्योरी. सक्सिनाइलकोलिन कैन कॉज हाइपरकैलेमिया स्पेशली इन द पेशेंट्स विद नर्व एंड मसल डिसऑर्डर्स. ऐसे पेशेंट जिनमें नर्व और मसल डिसऑर्डर है वहाँ पर सक्सिनाइलकोलिन जो है वो हाइपरकैलेमिया करवा देता है. देयरफॉर सक्सिनाइलकोलिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द पेशेंट्स विद नर्व डिजीजेज लाइक पैराप्लेजिया, हेमीप्लेजिया एंड गलियन बार सिंड्रोम. ठीक है, जैसे नर्व डिजीजेज जो है पैराप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, गलियन बार सिंड्रोम, यहाँ पे सक्सिनाइलकोलिन नहीं देते हैं, दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड. इसके साथ साथ मसल डिजीजेज जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मायस्थीनिया ग्रेविस, क्रश इंजरी, बर्न्स एंड रैप्डोमायोलिसिस, इसमें भी सक्सिनाइलकोलिन नहीं देते. कहाँ? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मायस्थीनिया ग्रेविस, क्रश इंजरी ऑफ द मसल्स, बर्न्स एंड रैप्डोमायोलिसिस, यहाँ पे भी सक्सिनाइलकोलिन एज अ एनेस्थेटिक एजेंट यूज नहीं किया जाएगा. Next, a 70 kg young athlete was planned for surgery. During anesthesia, Vercuronium was not available. Vercuronium was not available. So repeated doses of succinylcholine were given intermittently up to 640 milligram. That was the maximum dose. During recovery, the patient was not able to spontaneously respire and move limbs on his own. मतलब खुद नहीं respire कर पा रहा और खुद अपने हाथ नहीं ला पा रहा. What is the cause? देखो, ड्यू टू द यूज ऑफ सक्सिनाइलकोलिन देयर इज अ फेज 2 ब्लॉकेड. फेज 2 ब्लॉकेड हो गई है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी रिवर्सिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है और खुद के लिम्स मूव करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा जब रेस्पिरेटरी रिवर्स ही नहीं हो रहा. तो लेट्स गो विद एक्सप्लेनेशन. सक्सिनाइलकोलिन इज अ डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर दैट टेम्पररीली पैरालिसिस the stimulating muscles in the motor end plate. Now depolarizing block का मतलब क्या होता है कि the muscle membrane stays
कंटिन्यूसली डीपोलराइज, मतलब कंटिन्यूसली एक रिलैक्स स्टेट में मसल मेम्ब्रेन जो है वो रहती है। इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं वो अकर नहीं कर पाती हैं, ठीक है। ये सक्सिनाइल कोलिन का काम है। इनिशियल इफेक्ट ऑफ सक्सिनाइल कोलिन में क्या होता है कि मसल शोज फैसिकुलेशंस दैट इज ट्विचिंग फॉलोड बाय पैरालिसिस। सबसे पहले सक्सिनाइल कोलिन जब एक्ट करता है तो फेज 1 चलता है, जिसमें हल्की हल्की ट्विचिंग होती है सबसे पहले मसल में, फिर पैरालाइज हो जाता है मसल। मतलब अब मसल जो है वो कोई भी नर्व स्टिमुलेशन नहीं करेगा, या नर्व स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा सप्रेस हो जाएगी। फिर आती है बात फेज 2 ब्लॉक की। फेज 2 में क्या होता है कि लार्ज या फिर रिपीटेड डोजेस अगर हम सक्सिनाइल कोलिन की दे देते हैं तो ब्लॉक जो है वो नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉक की तरह एक्ट करना शुरू कर देता है। पेशेंट में प्रोलॉन्ग पैरालिसिस हो जाती है, वीक ब्रीदिंग हो जाती है और कोई भी मूवमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से एक नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट किया जाता है जिससे कि हम मसल्स को एसेस कर सकते हैं। 4 इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस दी जाती हैं नॉर्मल मसल में 4 इक्वल कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए। फेज 1 ब्लॉक में चारों ट्विच प्रेजेंट होते हैं लेकिन वीक होते हैं। फेज 2 ब्लॉक अगर आ गया तो जब हम ये टेस्ट कर रहे हैं, दैट इज ट्रेन ऑफ 4 टेस्ट और नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट, तो ज़रा भी फेड, मतलब बुरी फेड हो जाती है, वो इम्पल्सिव फेड हो जाती है, ट्विच अकर ही नहीं करता है, ठीक है। अब टेटनिक स्टिमुलेशन करवाते हैं। रैपिड कंटिन्यूस नर्व स्टिमुलेशन होती है, यूजुअली 50 हर्ट्ज में होती है 5 सेकंड के लिए। इट इज़ यूज टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। नॉर्मल मसल है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी इसमें, ठीक है। जो टेटनिक स्टिमुलेशन करवाएंगे तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। अगर फेज 2 ब्लॉक में चला गया है, मतलब काफ़ी डीप स्टेट में चला गया, तो कॉन्ट्रैक्शन भी सस्टेन नहीं करती है, ठीक है। सो देर इज़ अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन मसल रिस्पॉन्स ड्यूरिंग रिपीटेड स्टिमुलेशन ड्यू टू द ओवरडोज ऑफ this succinyl choline, ठीक है। After tetanic stimulation, the muscle normally becomes temporarily stronger. This is called as post-tetanic facilitation, ठीक है। अब post-tetanic facilitation जो है वो हमें phase 1 ब्लॉक में नहीं करनी पड़ती, लेकिन phase 2 ब्लॉक में करनी पड़ती है। So in the whole statement, we can say that very high repeated doses of succinyl choline, that is 640 milligram in toto, तो उसमें क्या होता है, द पेशेंट हैज़ गॉन फ्रॉम फेज 1 टू फेज 2 ऑफ द ब्लॉक, ठीक। फेज 2 ब्लॉक में ही कैनॉट मूव प्रॉपरली, ही कैनॉट ब्रीथ प्रॉपरली एंड ही शोज फेड नर्व्स ऑन नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट। नाउ हाउ विल यू रिकवर दिस? देखो, अगर पेशेंट नहीं कर पा रहा है ब्रीथ तो सबसे पहले एयरवे को सिक्योर करना है, ठीक है। डू नॉट इंट्यूबेट बट स्टार्ट मैकेनिकल वेंटिलेशन विद 100% सिक्योर ऑक्सीजन, ऑलराइट। इट इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि पेशेंट पैरालाइज है, ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, तो उसकी बॉडी के अंदर हिपॉक्सिया हो रहा है, जिसे हमें होने नहीं देना है। स्टेप 2 में क्या करते हैं, हम ट्रेन ऑफ 4 दैट इज TOF मॉनिटरिंग करते हैं, बार बार सिग्नल देते हैं, बार बार सिग्नल देते हैं, फिर 2 ब्लॉक से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, फिर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जो है उनको मैनेज करते हैं। फिर इसके साथ साथ एंटीडोट जो है सक्सिनाइल कोलिन का वो प्रेजेंट होना चाहिए। बिकॉज द फेज 2 बिहेव्स लाइक अ नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉक, you can try a reversal. So you will give neostigmine, that is 0.04 to 0.07 milligram per kg IV. Along with this, you will give glycopyrrolate, that is 0.1 milligram per kg IV और atropine. अब सक्सिनाइल कोलिन जो होती है वो प्लाज्मा सूडोकोलिनेस्टरेज एंजाइम होती है, उससे टूटती है बॉडी के अंदर। जब तक ये एंजाइम बॉडी से प्लाज्मा सूडोकोलिनेस्टरेज सक्सिनाइल कोलिन को ब्रेक करके बाहर नहीं निकालेगी, तब तक पेशेंट पैरालाइज रहेगा। तब तक हमें पेशेंट को पूरा सेफ इंट्यूबेट करके और सारी चीज़ें जो है वो मेंटेन करके रखना है। और ये फेज़ 1 से लेकर फेज़ 2 ब्लॉकेड हमारे पास, अगर हमारी डोज 7 to 10 मिलीग्राम पर kg ऑफ सक्सिनाइल कोलिन से ज़्यादा एक्सीड करती है तो बहुत ईजिली आ सकता है, और फिर ये एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की बहुत बड़ी तंगी वाली सिचुएशन बन सकती है। नेक्स्ट, द बेस्ट मीडिया फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ एक्सट्रैक्टेड टीथ इन द टिश्यू इज़ व्हाट? देखो, एक्सट्रैक्टेड टीथ है और उसका टिश्यू है, तो उसको हमने प्रिजर्व कर रखना है, तो दैट इज़ इन 10% फॉर्मेलिन। ओके, फॉर्मेलिन विल फिक्स द टिश्यू एंड प्रिवेंट फर्दर डीके ऑफ द टिश्यू। रिमेंबर, यहाँ पे जो वर्ड है दैट इज़ एक्सट्रैक्टेड, मतलब कोई ना कोई टूथ के अंदर दिक्कत थी जिसकी वजह से हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया है। इट इज़ नॉट एवल्स्ड, किसी ट्रॉमा से एवल्स नहीं हुआ है, हमने खुद एक्सट्रैक्ट किया है और हम उसे स्टडी करना चाहते हैं, तो वी विल प्रिजर्व इट इन 10% फॉर्मेलिन सॉल्यूशन। Next, which of the following needles are used in oral surgery? So half round needle, it is used in oral surgery. These needles have half circle shape and are suitable for suturing tissues that are deeper in the body, such as abdominal wall or muscles. In periodontal surgery, 3/8 reverse cutting needle is used. Next, a 45-year-old patient has sustained a mandibular body fracture with fracture line running from the internal linguoplate obliquely backward and buccally. Which muscle is primarily responsible for displacement of the proximal segment in this fracture?
ठीक है, तो मसल रिस्पॉन्सिबल विल बी मीडियल टेरिगॉइड. In this type of fracture, the fracture line runs from internal lingual plate obliquely backward and buccally. मतलब obliquely backward and buccally ऐसे रन कर रहा है आगे से पीछे की तरफ. अगर हम मैंडिबल बनाए तो this is running obliquely backward and buccally. तो resulting in medial displacement करवा देगा. Muscle responsible will be medial pterygoid and lateral pterygoid causes the medial displacement of the proximal segment. ठीक है. Next, a young male patient met with a road traffic accident and was admitted to the emergency department with a fracture of pelvis and femur, for which he was being treated. Now he is manifesting difficulty in breathing, developing pinpoint bleeding spots and seizures. क्या develop हो रहा है? Pinpoint bleeding spots and दौरे पड़ रहे हैं इसके साथ साथ. Most likely the diagnosis will be what? The diagnosis will be fat embolism. जब pelvis और femur गई, femur is a long bone, वहाँ पे जो fat वाली रीजन होता है दैट स्टार्ट्स टू एम्बोलाइज इन द बॉडी, विच इज़ अ मेजर कॉम्प्लिकेशन विद एक्यूट ट्रॉमा ऑफ द फीमर फ्रैक्चर. टेकीकार्डिया हो सकता है फैट एम्बोलिज्म की वजह से, टेकीपनिया हो सकता है क्योंकि ये जाके बीच में नर्व्स जो हमारी वेसल्स हैं उनके बीच में जाके ब्लॉकेट बना देगी. फीवर फॉलोड बाय फुली डेवलप्ड सिंड्रोम्स विच इंक्लूड पल्मोनरी फेलियर, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स एंड पॉसिबल डेवलपमेंट ऑफ मल्टी ऑर्गन फेलियर सिस्टम कैन अकर, क्योंकि ये फैट एम्बोलाई जाके वेसल्स के अंदर ब्लॉकेट करवा देते हैं जिससे कि हिपोक्सिया हो जाता है और ये सिस्टम सारे जो हैं वो फेल करना स्टार्ट कर देते हैं. नेक्स्ट, 10-year-old child visited the OPD with a complaint of fever and malaise. Histopathological examination showed presence of stellate granulomas. Most likely the diagnosis is what? Stellate granulomas दिख रहे हैं और पेशेंट जो है 10 साल का बच्चा है जिसमें फीवर और मैलाइज आ रही है. तो दिस इज़ अ फीचर ऑफ कैट स्क्रैच डिजीज़. ठीक है, तो उससे हिस्ट्री पूछनी है हमने कि क्या कोई बिल्ली वगैरह ने स्क्रैच किया था या नहीं किया था. कैट स्क्रैच डिजीज इज अ इन्फेक्शियस डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय बार्टोनेला हेंसले. This disease occurring at any age but predominantly in children and young adults is thought to arise after a traumatic break in the skin due to the scratch bite or bite of a household cat. It is characterized by lymphadenopathy which may persist for 1 to 6 months and may be accompanied in early stages by low-grade fever, headache, chills, nausea, malaise, and even abdominal pain. The other manifestations occasionally seen in non-pruritic macular or maculopapular rash, मतलब बगैर खुजली वाला मैकुलर या मैकुलोपैपुलर रैश अकर कर सकता है, पैरोटिड स्वेलिंग अकर कर सकती है, कंजक्टिवाइटिस एंड ग्रैंड माल सीजर्स कैन अकर. Early in the course of the disease, the involvement of the lymph node manifest as reticuloendothelial hyperplasia. ठीक है, रेटिकुलोएंडोथेलियल सेल्स जो होता है उनका हाइपरप्लेजिया हो जाता है इन द हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड्स. लेटर देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ लिम्फ नोड आर्किटेक्चर विद फ्लोकल ग्रैनुलोमस. जब डिजीज और ज़्यादा प्रोग्रेस करती है तो देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ लिम्फ नोड आर्किटेक्चर और उसमें फोकल ग्रैनुलोमस दिखाई देते हैं, सपोरेशन दिखाई देती है, नेक्रोसिस दिखाई देती है. इट डेवलप्स विद द कैप्सुलर थिकनिंग हो जाती है लिम्फ नोड्स की. एपिथेलॉइड सेल्स क्या होते हैं? द एपिथेलॉइड सेल्स आर द स्टार शेप्ड stellate reticulum multinucleated giant cells. ठीक है, स्टार शेप्ड stellate multinucleated giant cells, these are epithelioid cells, these are seen in cat scratch disease. Next, which of the following glycoprotein is found in glomerular basement membrane? glomerular basement membrane में heparan sulfate दिखाई देता है, heparan sulfate. glomerular basement membrane mainly consists of collagen type 4. Type 4 is mostly present in glomerular basement membrane, that is collagen. Laminin present होता है, laminin and polyanionic proteoglycans, जिसका एग्जाम्पल है हमारे पास हेपरन सल्फेट. हेपरन सल्फेट जो है वो रिपेल करता है प्रोटीन एल्ब्यूमिन को. तो प्रोटीन एल्ब्यूमिन को रिपेल करने वाला हेपरन सल्फेट ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है. बाकी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं सिर्फ भटकाने के लिए, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, कैरेटिन सल्फेट 1, कैरेटिन सल्फेट 2, लेकिन ना ही कैरेटिन सल्फेट, ना ही कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ना ही कैरेटिन सल्फेट 2, हेपरिन सल्फेट होता है, हेपरिन सल्फेट. नेक्स्ट, द प्लेक्सिस ऑफ रैश काउस आर सीन इन, तो आंसर इज सेल फ्री जोन ऑफ व्हील, WEIL. सेल फ्री जोन्स ऑफ व्हील में हमारे पास प्लेक्सिस ऑफ रैश काउ दिखाई देते हैं. The nerves of the pulp are of 2 types. They could be unmyelinated parasympathetic nerves, which are unbranched
and end in blood vessels to control the blood flow. And there are myelinated nerves on the other hand, and somatic nerves which lose their myelin sheath before they branch to form plexus in the cell-free zone. ठीक है, this plexus is often referred to as plexus of Rashkow. Some of these extend to the end below the odontoblast and form a synapse, while other go up to the predentine and loop backward from the predentine, while very few travel within the dentinal tubules, spiraling around the odontoblastic processes. Since the pulp contains only free nerve endings, all the forms of sensory stimuli to the pulp are pain sensation. क्योंकि पल्प में सिर्फ फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं, तो जितना भी सेंसरी स्टिमुलस पल्प के पास जाता है वो पेन सेंसेशन की फॉर्म में होता है. सिंपल तरीके से बात करें तो इसने कहा कि नर्व्स दो टाइप की होती हैं, अनमाइलिनेटेड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो कि अनब्रांच्ड होती हैं और एंड करती हैं ब्लड वेसल के अंदर. ठीक है, अब ये अनमाइलिनेटेड वाली जो है वो सीधा ब्लड फ्लो को कंट्रोल कर रही है. अब दूसरी होती है माइलिनेटेड नर्व्स. माइलिनेटेड नर्व्स और सोमैटिक नर्व्स क्या करती हैं, सोमैटिक नर्व्स में माइलिन शीथ लूज कर दी होती है उन्होंने. ठीक है, माइलिनेटेड नर्व्स एंड सोमैटिक नर्व्स ये ब्रांच होने से पहले एक प्लेक्सिस बनाती है इन द सेल फ्री जोन. जहाँ पे सेल फ्री जोन होता है वहाँ पे माइलिनेटेड और सोमैटिक नर्व्स का एक प्लेक्सिस बना होता है, एक पूरा नेटवर्क बना होता है. इस प्लेक्सिस को बोलते हैं, जिसके अंदर माइलिनेटेड नर्व्स और सोमैटिक नर्व्स प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं प्लेक्सिस ऑफ रैशकाउ. ठीक है, सोमैटिक नर्व ने माइलिन शीथ लूज कर दी है, माइलिनेटेड नर्व्स के बाद माइलिन शीथ प्रेजेंट है. ठीक है, और इनकी फ्री नर्व एंडिंग होती है, माइलिनेटेड की भी और सोमैटिक की भी. इस फ्री नर्व एंडिंग की वजह से पेन ही रिसेप्टर, पेन की सेंसेशन ही सिर्फ पल्प ले पाता है, बाकी कोई सेंसेशन ना ही ठंडा गर्म ना ही कुछ, वो कोई पल्प नहीं ले पाता है. नेक्स्ट, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बोन इज प्रोवाइडेड बाय विच कॉम्पोनेंट. द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बोन इज प्रोवाइडेड बाय द कॉम्पोनेंट दैट इज कोलेजन. कोलेजन बेंडिंग ऑफ द बोन प्रिवेंट करवाता है. ठीक है, और हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो है वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है. लेट्स गो विद द थ्योरी. द प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड प्रोटियोग्लाइकन्स of the extracellular matrix in the cell matrix adhesion and signaling system, they regulate the diffusion of nutrients, waste products and soluble signaling molecules, thereby imparting connective tissue to their characteristic properties of tensile and compressive strength. Tensile और compressive strength के साथ elasticity. In certain tissues they provide appropriate conditions for nucleation and growth of mineral crystals so as to provide the tensile strength to the bone. ऑलराइट, और कौन सा कंपोनेंट है, कोलेजन टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, बेंडिंग से प्रिवेंट कराता है, बेंडिंग में जो ब्रेकेज होगी उससे प्रिवेंट करवाता है. नेक्स्ट, विच सेल्स ऑफ द ओरल एपिथेलियम आल्सो हैज फंक्शन ऑफ इम्यूनिटी. ओरल एपिथेलियम में लैंगरहैंस सेल्स आर द सेल्स दैट आल्सो हैव द फंक्शन ऑफ इम्यूनिटी. ऑलराइट, लैंगरहैंस सेल्स आर इन्वॉल्व्ड इन इम्यून रिस्पॉन्स. द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेनिक चैलेंज बाय द बैक्टीरियल प्लाक, लैंगरहैंस सेल्स माइग्रेट इनटू द जिंजाइवा. ठीक है, they also migrate into the epithelium in response to chemotactic factors released by keratinocytes to the surface receptors of Langerhans cells. ठीक है, जो chemotactic factors keratinocytes छोड़ते हैं उसके अगेंस्ट भी Langerhans cells जाके वहाँ पे इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं. Langerhans cells में LA एंटीजेंस होते हैं which they present to the prime T cells, thymocytes. Thymocytes T cells होते हैं जो कि मुंह के अंदर काम कर रहे होते हैं, इम्यूनो काम कर रहे होते हैं. ठीक है, द थाइमोसाइट्स मे फंक्शन एज मैक्रोफेजेस. बाय पिकिंग अप एंटीजन दे प्रेजेंट इट टू लिम्फोसाइट्स. ईदर वे दे लोकली और अराउंड द माउथ, वो यहाँ से सारे जो भी एंटीजन्स हैं उनको उठा के लिम्फ नोड्स तक ले जाते हैं. वहाँ पे एंटीजन्स जो बाहर से आए हुए हैं उनका डिस्ट्रक्शन होता है. लैंगरहैंस सेल्स विद HLA-DR एंड T6 एंटीजन्स. कौन से एंटीजन, HLA-DR and T6 एंटीजन इन द Langerhans cells also interact with lymphocytes but do differently in mechanism than keratinocytes. इसके अलावा Langerhans cells present the antigen to specific helper T cells. The interleukin-1 secreted by the keratinocytes induces the T cells to produce interleukin-2. Interleukin-2 जो है वो बाइंड करती है responsive T cells के साथ. ये रिस्पॉन्सिव टी सेल्स हमारी बॉडी में सोल्जर्स की तरह काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जब इंटरल्यूकिन 2 इसके साथ बाइंड करती है तो इससे टी सेल्स का प्रोलिफरेशन बढ़ जाता है. ठीक है, अनदर फैक्टर विद कॉमन बायोकेमिकल एंड बायोफिजिकल प्रॉपर्टीज टू इंटरल्यूकिन 1 इज एपिडर्मल डिराइव्ड थायरोसाइट एक्टिवेटिंग फैक्टर.
epidermal derived thyrocyte activating factor, which apparently is produced by subset of keratinocytes. ये जो ETAF है, that is epidermally cell derived thyrocyte activating factor है, it produces a important role in contact hypersensitivity, ठीक है, in anti-tumor immunity and in graft rejection. एंटी ट्यूमर इम्यूनिटी में बढ़ जाता है और जब ग्राफ्ट रिजेक्शन वाला केस आता है तब भी ये चीज़ बढ़ जाती है. दिस शटल बिटवीन एपिथेलियम एंड रीजनल लिम्फ नोड्स, जो ये ETAF है, थायरोसाइट्स हैं, ये एपिथेलियम और रीजनल लिम्फ नोड्स के बीच में घूमते रहते हैं. कोई भी एंटीजन मिला लिम्फ नोड तक ले जाएंगे, वहाँ पे लिम्फ नोड में एंटीजन को मार दिया जाएगा, जो बाहर का एंटीजन आया उसको मार दिया जाएगा. दिस इज द फंक्शन ऑफ लैंगरहैंस सेल्स इन द ओरल एपिथेलियम.